faces attending and benefiting from these sessions. So thank you all for joining timely and would request you to be like this always. So once again, very good evening. I would like to wish Principal Ma'am also a very good evening. Okay. Good evening. Yes. हौसला दिल में बसा कर आज खुद को आजमाए ख्वाब दिल कहीं मान ले क्यों एक नई दुनिया हम बनाए. आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हमारी छुट्टियों में संडे को इतनी बेसुरी आवाज में मैम अपना सॉन्ग क्यों सुना रही है. उसके पीछे एक रीजन है. देखिए, it is very rightly said that a healthy mind is the greatest treasure to find. And mental health is not a destination, but a process. It's all about how you drive and not where you are going. Or during corona time, during this lockdown, this corona, it was a period of darkness, it was a period of separation, and it brought a lot of emotional scars and tensions in maximum families. But life has to move on. So dear mothers, sorry, I'm getting emotional. Dear mothers, would like to tell you that you all are aware that on 30th October, World Mental Health Day is celebrated all over the world. So today, on this day, in lieu of that only, and knowing the importance of mental well-being, mental health, the positivity, our revered principal ma'am has taken an initiative to take this session to spread her positive vibes to all our dear mothers and to all our extended family members of DAV Nursery School. So I would like to one more thing, would like to introduce ma'am. Ma'am is an educationist, a trainer, a psychologist, and a registered student counselor. So if you have any personal issues also, you can definitely come to ma'am and discuss with her. And thank you all for joining this session and benefiting from her. So first of all, please switch on your cameras and give a warm welcome to Principal Ma'am with your claps. We can hear your silent claps. Keep yourself on mute, but welcome Ma'am with your claps. I am clapping on behalf of you all. We welcome you, Ma'am. Thank you, Shweta. Yes, ma'am, over to you. I would like to thank all my dear parents. It's been a long time. When I always try to, steal a time to see you all for any of the reason, for the positive reason. And yes, I would like to thank everyone that especially my staff that also always try to search something or try to find out that yes ma'am, now you can meet the parents, because you all are meeting, you are very fortunate to see your teachers, to meet almost every day. But for me, I would like to say that जितना टाइम आप लोग इंतजार कर रहे हैं स्कूल खुलने का, शायद उससे थोड़ा सा ज्यादा मैं वेट कर रही हूँ आप सबसे मिलने के लिए. आई एम सो ईगर टू सी यू, ईगर टू मीट यू. और वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू माय स्टाफ, जो इस फीलिंग को अंडरस्टैंड करके कोई ना कोई एक मौका ढूंढ लेता है और मुझे कहता है कि मैम यस यू कैन मीट और यू कैन टॉक टू द पेरेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन. So thanks a lot. अभी श्वेता ने बताया आप लोगों को कि अभी हाल फिलहाल में ही 30th October was our World Mental Health Day. It is quite surprising कि mental health day, like we are like उस समय हम कुछ जागते हैं, कुछ चीजें देखते हैं कि जब हमारे लिए पर्टिकुलर कोई एक डे आता है. डॉटर्स डे पर डॉटर्स बहुत ज्यादा वो अफेक्शनेट हो जाती हैं टुवर्ड्स देयर पेरेंट. मदर्स डे पर हम पेरेंट्स के लिए हो जाते हैं. बट
इट्स अ प्रोसेस, और अच्छी बात भी है कि कोई ना कोई बहाना हम अपनी खुशी का ढूंढ ही लेते हैं, और होना भी चाहिए। तो आज हालांकि मेरा काफी फेवरेट टॉपिक भी है मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, इस पर पहले भी काफी मैंने बात की है और काम किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअली जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ तो हमारे सबके लिए एक कॉमन चीज है कि एवरी वन वॉन्ट्स टू बी हेल्दी, सबको खुश रहना जरूरी है और सभी चाहते हैं कि खुश रहें। तो मैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है जब हम जो कुछ सुन रहे हैं वो सामने अपने स्क्रीन पर अगर देख लेते हैं। तो मैं Dear mothers, this is an interactive session. In the end of the session, you are free to ask your questions. But before that, ma'am's presentation has to be completed, and the information she wants to share, let it be completed, and then you can have your queries. Yeah, she'll join us with them. I can see so many students glued to the screen. Children, this session is for your mama and papa. You can go and play, and later on they'll explain you what is required for you of your age group. And if you are gluing to the screen, please keep blinking your eyes, because I don't want extra strain on your eyes. And informing you well in advance that soon I'll be coming up with another session of a dietitian, because Diwali is approaching, and I have a sweet tooth. I don't know about everyone, but yeah, many people love to have sweets during festive season. But at the same time, we have to take care of our weight. So I'll be coming up with that also, and other sessions also. So you'll be getting messages. So request you to join that also. Because of the rain, there must be some network issue. That is why ma'am has left. Let's wait. How many of you have got a chance to meet ma'am during lockdown? Please write in the chat box. I think no one from this group. Okay. Mrs. Kushwaha, all right. Okay, Akshatanjana, class 3 parents. Okay, Aryan's mother. Okay, Uma. Good. But these kinds of sessions, ma'am, take outside schools on radios. That is why we just wanted that they should be conducted for our parents also. Yamini ma'am, are you there? No, ma'am. Okay, Yakshina ma'am, please call ma'am. Yeah. I think she must be calling her. All right. She just left. Shweta ma'am, is principal ma'am joined back? No ma'am, waiting for her only. Okay, just give me a second, ma'am. I'll ask her. Yes, beta, even we are missing school. We want to see you all, see your happy faces. That is why we just try to come up with something or the other to meet you all.
So children, are you all enjoying your vacation time? Yes? Good. Yes, ma'am. Great, great. And today class 3 had their PTM? Okay, everybody is writing yes in the chat box. Good. Yes, ma'am. Ma'am, Yes. we can start today. Let me Yes, present ma'am. my screen Yes, ma'am. so that it would be easy for us. All right, ma'am. Ma'am, screen is visible, ma'am. Okay. Ma'am, you can just minimize this screen. Yeah. Ma'am, visible, ma'am. Yes, ma'am, it's visible. Thanks a lot. Yes. Today we are going to talk about mental health. सबसे पहले बहुत जरूरी है हमें ये जानना कि मेंटल हेल्थ है क्या. देखिए, everyone wants to be healthy. हमें फिजिकल हेल्थ सबको समझ में आती है. किसी को फीवर आ गया या कोई इन्फेक्शन हो गया, then we rush to doctor. But mental health gradually कब हमारे थॉट प्रोसेस से निकल के हमारे एक्शंस तक पहुंच के और हमारी काफी ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब कर जाती है, वो हमें जल्दी पता नहीं चलता. तो बेसिकली मेंटल हेल्थ इज नथिंग बट द हार्मनी among our thought process, our feelings and actions. हम कैसा सोच रहे हैं, उसको हम किस तरह से परसीव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस होते हैं. तो ये सभी चीजें हमारी 3 कैटेगरीज में आती हैं. We all are very well aware about our emotions, क्योंकि without emotions one can't even behave. So कोई ना कोई तो इमोशंस होते हैं. इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबीइंग. कैसी हमारे इमोशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे मन का विज्ञान कैसा है, हम कैसा सोच रहे हैं और फिर सोसाइटी में हमारे एक्शंस कैसे, उसको एज आप एक्शंस कहिए या अकॉर्डिंग टू आवर इमोशंस हमारे रिएक्शंस कैसे होते हैं जब सामने वाला कोई बात करता है. So this is basically related to overall health. Mental health is very important, क्योंकि अगर mental health हमारी ठीक होती है तो हमारा overall well-being रहता है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. आप अपनी फेवरेट कार में with 100 like आपका जो टैंक है उसमें फ्यूल बिल्कुल फुल है और you are moving to your favorite destination. बट फिर भी अचानक से कई बार आपसे कुछ गलती हो जाती है और आपका कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है. पता लगा किसी भी चीज से जाके आप एकदम से स्ट्रक हो गए और आपका एक्सीडेंट हो गया. और हम क्या सोचते हैं कि एक्चुअली बहुत स्ट्रेस था, बहुत टेंशन था. तो वो जो हार्मनी नहीं मेंटेन कर पाते, दिस इज कब हमारी मेंटल डिसऑर्डर में चेंज हो जाए, वो जल्दी नहीं पता लगता. मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी ऑल ऑफ अस शुड टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ फर्स्ट. आपकी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी. दैट हम इस पर आगे भी बात करेंगे. और एक बात मैं आपसे कहूंगी, वो हमारे हर स्टेज पर जो है इम्पैक्ट करती है. छोटे छोटे बच्चों को हमने कहते सुना होगा घरों में अपने कि बड़ा टेंशन हो रहा है. इवन 4 साल के 5 साल के बच्चे कहते हैं मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, आज बहुत सारा होमवर्क मिल गया, मुझे टेंशन मत दो. ये सेंटेंसेस हमने अपने घरों में बहुत सुने और हम बच्चों पर हंसते हैं. उनकी बात दूसरों के साथ करते हैं कि देखो कैसी वोकैबुलरी यूज कर रहा है, ये छोटे छोटे हैं, अभी से टेंशन शुरू हो गया. टेंशन करने की एज तो हमारी है.
तो सॉरी टू से मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि टेंशन करने की, टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की एज तो किसी की भी नहीं होती है, क्योंकि किसी भी एज में स्ट्रेस हैंडल नहीं होता। ये इट इज नथिंग बट जस्ट अ वोकैबुलरी जिसको हम कहीं ना कहीं मिसयूज करते हैं और हम कैरियर हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चे समझ लेते हैं, सीख लेते हैं कि कब हमें टेंशन वर्ड का यूज करना है, स्ट्रेस वर्ड का यूज करना है। जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो हमारी ओवरऑल, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ओवरऑल वेलबींग, हमारी टोटल जो हम बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम, बॉडी माइंड सोल, जो प्रॉपर इसको अफेक्ट कर जाती है। ये दोनों एक ही गाड़ी के दोनों पहिए हैं। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, अगर आप मन से खुश हैं, मन से ठीक हैं, तो ओवरऑल हेल्थ विल नेवर गेट अफेक्टेड। ट्रस्ट कीजिए, आप अगर हाई फीवर में भी हैं, बट आप अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हैं, आपको मालूम है, आपके मन में ये विश्वास है कि ये फीवर मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, बस मैंने ठीक होना है और मैं ठीक हो जाऊंगी, तो क्या होगा कि आधी बीमारी आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हम दूसरों के बातों, अपने बातों से ज्यादा दूसरों पर ज्यादा, हमारी दूसरों की जो रिमार्क्स हैं, कमेंट्स हैं, वो ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। बार बार लोग कहते हैं कि ये बीमार है, आप कैसे हैं, बीमार हैं, तो वो बीमार बीमार सुन के फोन पर भी बताते हैं वो तो आजकल बहुत हाई फीवर आ रहा है, हाई हाई, हम वो ही सेम एनर्जी जो है फ्लो करते हैं सब तरफ और उसी पर ट्रस्ट करते हैं, हाँ मैं बीमार। तो ये सारी चीजें जो है वो साथ साथ चलती हैं। अगर हम मेंटली कुछ चीजें अपने मन में ठान लें कि नहीं, वी हैव टू परफॉर्म स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू थिंक स्ट्रॉन्ग, then it will not affect. हम सभी जानते हैं कि if our mental health is not so good and if we are not working on our mental health, then it can lead us to the very serious health conditions. आपने आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि भाई हम तो कुछ मीठा खाते ही नहीं, मुझे फिर भी डायबिटीज है। अब देखिए, डायबिटीज जब वन बिकम्स और अफेक्टेड फ्रॉम डायबिटीज, देन वो उसमें क्रेविंग होती है कि मुझे मीठा खाना है। पहले वो मीठा नहीं खाते, जरूरी नहीं कि वो मीठा खाएं तभी हमें डायबिटीज होती है। डॉक्टर भी बताता है स्ट्रेस मत लीजिए। डायबिटीज का एक मेन रीजन है हमारा स्ट्रेस, और कंटिन्यूअस हमारे स्ट्रेस जब हम उसको पाइल अप करते रहते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं, एंड समटाइम्स वी हैव सीन हार्ट स्ट्रोक्स की भी नौबत आ जाती है। इनफैक्ट बहुत पीक पर जाके तो बहुत सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और कभी कभी तो हम अपनी लाइफ भी ले लेते हैं। देखिए, जो इंसान अगर अपनी केयर कर रहा है, डज नॉट मीन कि वो सेल्फिश है, डज नॉट मीन कि उसको सब कुछ पहले चाहिए। दैट मीन्स मुझे भी खुश रहने का हक है, मुझे भी हर चीज चाहिए जो मुझे सेटिस्फाई कर सके, जो मुझे खुश रखे। तो टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ डज नॉट मीन मी फर्स्ट। देखिए, मैंने अभी आप लोगों से बात की कि मेंटल हेल्थ, अगर we will not take care of our mental health, it will slowly, or we will not even come to know, will convert into disorders. बहुत बार, और सबसे बड़ी बात कि हमें नहीं मालूम हो पाता है। कभी कोई फीवर होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, हम भागते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन कब हमारा बिहेवियर इस एक्सट्रीम लेवल को क्रॉस कर गया वो हमें पता नहीं चल पाता। और
जब इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर बॉडी, आपको हेडेक शुरू हो गया, आपको माइग्रेन शुरू हो गया, तब आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब पता चलता है कि आपका बिहेवियर ही कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो गया। छोटी छोटी चीजें जब हम अपने डे टू डे रूटीन में जब हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारी फंक्शनिंग अफेक्ट होने लग जाती है, तब हमें कभी भी एहसास नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, हालांकि दीज एग्जाम्पल्स आप में से ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं सुना होगा। अक्सर ये कहते सुना है कि बहुत डिप्रेशन है, आजकल वो डिप्रेशन में चला गया, मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे वो चीज नहीं मिली इसलिए मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे उसने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया इसलिए मैं डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, जो कि बहुत एक्यूट लेवल पर जब हार्मनी कंप्लीटली अपना बैलेंस खो देती है, तब हम इस तरह के जो बहुत ही सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके शिकार हो जाते हैं। सिजोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर में पता ही नहीं चलता है कि कब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिव थॉट में आ गए हैं जिसको हमने रियलिटी मान लिया और हमारा बिहेवियर कैसा हो गया, कंपल्सिव हो गया, हमें वही चीज अभी चाहिए। सिजोफ्रेनिया, आप देखिए हर चीज के पीछे, सारी जितने भी ये डिसऑर्डर्स हैं, इनके सबके पीछे एक चीज तो बहुत कॉमन है, ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव थॉट्स, स्ट्रेस डिसऑर्डर, सोशल फोबिया, हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, आई एम नॉट गुड लुकिंग, सो we start avoiding the parties, we start avoiding the people। कभी स्ट्रेस में ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं और हम बात क्या करते हैं, हमारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, उससे दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और कभी खाना पीना सब छोड़ देते हैं क्योंकि भूख ही नहीं लगती। अब आप ये देखिए, ये साइकोलॉजिकल जो हमारे रीजंस हैं वो कब हमारे लिए फिजिकल रीजन बन गए, फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करने लगे। जब आप ज्यादा खाएंगे ओबीस हो जाएंगे, जब आप बहुत कम खाएंगे, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, आपको और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, एनीमिया शुरू हो जाएगा, एक्सेसिव वीकनेस शुरू हो जाएगी। और कभी कभी तो जब हम अपनी मेंटल हेल्थ को हैंडल नहीं कर पाते हैं तब एडिक्शंस में चले जाते हैं, क्योंकि हम कोई ना कोई आर्टिफिशियल वे फाइंड आउट सम आर्टिफिशियल वेज के वो थोड़ी देर के लिए हमें कुछ आपको पीस दे रहे। पीपल यूज अल्कोहल, they do smoke, they go for the medications। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगी, when we go to the doctor, what the doctor say? Doctor gives antidepressant, and what is the role of these antidepressant medicines? Makes us sleep for longer period of time. And what is the reason of making us sleep by the doctor or through the antidepressant? The reason is keep you relax। आप जागते हुए, जब आप अपने पूरे होशो हवास में हैं, जबकि आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि वो आपका मन है, किसी दूसरे का नहीं। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वो टैबलेट्स। और वो आपको रिलैक्स करती है क्योंकि वो काफी लंबे समय तक सुला देती है। दैट मीन्स यू नीड रिलैक्सेशन। और वो रिलैक्सेशन कैसे आएगा? हमारा जो ब्रेन है, एज पर द स्टडी इट सेज ऑलमोस्ट एवरी डे 600 थॉट्स इट डिलीवर्स इन कॉन्शियस वे एंड अनकॉन्शियस वे। लेकिन
हम क्या करते हैं, उन सारे थॉट्स में हमारे मैक्सिमम थॉट्स को हम कन्वर्ट करते हैं नेगेटिविटी में। कुछ कॉजेज ऐसे हैं जो मेंटल डिसऑर्डर्स को, इसके पीछे क्या कारण है, इनफैक्ट जेनेटिक, हेलो, हाँ, Yes, ma'am. few causes are there. Genetics, परिवार में किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई होती है, हमारे पेरेंटल मदर मैरिटल साइड या मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड, कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कभी कोई ऐसे किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हुआ होता है, कभी कभी वो भी इफेक्ट कर जाता है। हालांकि मैं आप लोगों से फिर भी कहूंगी एवरीथिंग इज क्योरेबल until it should be diagnosed in time. अगर समय से आपकी चीज डायग्नोज हो गई तो वो क्योरेबल जरूर है। कुछ इन्वायरमेंटल और कुछ हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप हम सभी जानते हैं। मैं आप लोगों को एक वाकया सुनाऊंगी, बहुत रियल जेनेटिक्स के बारे में, क्योंकि मैं इससे पहले कि नेक्स्ट टॉपिक पर आऊं, मेरे पास एक मदर आई और वो अपने बच्चे को लेकर आई। उनका शी हैज अ सिंगल चाइल्ड। उनकी कंप्लेंट थी कि मैम मेरा बेटा हंसता नहीं है। दे वर वेरी वेल टू डू, ऐसी कोई चीज जो वो सोचे और वो उसके सामने होती थी अपने बेटे के लिए। उनके पास एक ही बेटा, वेरी वेल टू डू, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं थी। और उनकी एक ही कंप्लेंट थी कि मेरा बच्चा हमेशा एक बहुत दुखी रहता है, और रीजन आप जब हम उससे पूछते हैं तो वो कोई रीजन बता नहीं पाता। वो जब भी पूछते हैं कम बोलता है और कहता है कोई कारण नहीं है। इससे वो बहुत गुमसुम रहता है। देखिए कोई भी माँ बाप स्माइल्स डू वंडर, और बच्चे की हंसी और किलकारी और बच्चे को खुश देख के तो शायद आधी नहीं मैं कहूंगी हमारे सारे टेंशन से खत्म हो जाते हैं। मेरे पास आप लोग आते हैं, आप कहते हैं देखिए बच्चे के लिए कुछ भी, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारा क्रिएशन होता है और हम चाहते हैं जो हमारा क्रिएशन है हमारे सामने वो बहुत खुश है। तो वो पेरेंट का ये कहना था कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा है, कि हम डॉक्टर से भी मिलकर आए हैं तो उन्होंने कहा इसको डिप्रेशन है, बट हमें नहीं समझ में आता उसको कौन सा डिप्रेशन है। वो स्कूल भी नहीं जाना चाहते। आप बिलीव करेंगे मैंने इस पर बहुत काम किया और इनफैक्ट मुझे भी काफी समय तक नहीं समझ में आया कि क्या रीजन है। मैंने बात की, पेरेंट्स से बात की, सब कुछ तो उनके घर में, उनके घर भी देख कर आई कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो मुझे मिल जाए। अचानक से मुझे याद आया, मैंने उसकी मदर को इनफैक्ट दोनों को बुलाया अपने क्लिनिक पर। मैंने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी थी। मैंने कहा कि वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। बोले मैम हस्बैंड सेड कि मैम इसने तो सारे टाइम रोते ही रोते निकाली है प्रेगनेंसी, ये तो सारे टाइम रोती रहती थी और बहुत स्ट्रेस था हमारी लाइफ में। आई गॉट इट, मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा ये है रीजन आपके बच्चे का। जब आप कभी हंसे नहीं और आप कभी खुश रहे नहीं तो आपका बच्चा कैसे स्माइल करेगा। जब हमें कारण पता लग जाता है तब हमें उसका ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हमें आज नहीं दिखाई देते, लेकिन जब हमें नजर आता है कि पहले क्या हुआ, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा बिहेवियर कैसा है दैट अफेक्ट्स। इनफैक्ट ऐसा अक्सर होता है, ऑलमोस्ट 40% बच्चे का जो बिहेवियर है वो तभी तय हो जाता है जब आप उसको जन्म देने के प्रोसेस में होते हैं। कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट होते हैं, आप जानते हैं
कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चों के। स्मॉल चिल्ड्रन आर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और बुलिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। उसका इम्पैक्ट बहुत इनफैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे जैसे कई बार हम सोचते हैं कि बच्चा भूल जाएगा, बच्चा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एज वी ग्रो, वो जो उसका इमोशन है ना, वो भी ग्रो होता चला जाता है साथ साथ, और वो और स्ट्रांग हो जाता है जब तक कि हम उसको उसी लेवल पर क्योर ना करें। कुछ ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं। देखिए, 2 तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। फिजिकल में आपसे ये कहूंगी कि कई बार हमें से ऐसा होता है कि सब कुछ हमारे पास परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ है, बट फिर भी हमारा जो मूड है वो अच्छा नहीं लगता, मन खराब खराब सा रहता है। और हम डिस्कस भी करते हैं कि आज पता नहीं क्या बात है, कुछ ठीक नहीं लग रहा और बहुत उदास सा लग रहा। रीजन पूछते हैं, हमें भी नहीं मालूम होता। सब तो ठीक है, किसी ने कोई बात कही, नहीं कोई बात नहीं, किसी ने आपको हर्ट किया, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं, फिर क्या रीजन? देखिए, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, 2 तरह के केमिकल्स होते हैं, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। और कुछ ऐसे केमिकल्स जो होते हैं, अगर हैप्पीनेस के हो या अनहैप्पीनेस के, जो या तो एक्सेस में जो भी रिलीज होना चाहिए वो बहुत कम हो जाते हैं, और या जिनको बहुत कम रिलीज होना चाहिए वो बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होने लग जाते हैं। ये होता है हमारा फिजिकल रीजन, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल डिसऑर्डर। ये कोई भी चीज, मैं ये नहीं कहूंगी लॉन्ग लास्टिंग तब बनती है, इनफैक्ट जब वो अगर हम उसी टाइम पीरियड पर जब कुछ ऐसा है उसमें हम अपने आप को क्योर करने, वी शुड बी विजिलेंट। जब कुछ नहीं है तब हमारा मन उदास है, दैट मीन्स अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मन हमारा हमारी कंट्रोल में होता है। हम मन के कंट्रोल में कैसे आ जाएंगे? वो ही सीवियरिटी है, दैट बिकम्स डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकली जो कुछ है वो सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में है, उसे आप ठीक कर सकते हैं। हम अपनी थिंकिंग से, अपने थॉट प्रोसेस से कुछ ऐसे सिग्नल्स अपने ब्रेन में भेज देते हैं जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्ट करने लग जाते हैं, और तब हमें लगता है, और वो कई बार हमारे कॉन्शियसनेस में भी नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि अच्छा ये भी ऐसा हो सकता है। इसका एक रीजन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी है। कभी बचपन में बहुत ज्यादा, कभी गिरने से या किसी एक्सीडेंट से कभी चोट लग गई हो, इनफैक्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर भी अगर कोई चोट लग गई तब भी ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। We'll be discussing about some key components of mental health. Cognitive health, हम सभी जानते हैं, अभी मैंने आज डिस्कस भी किया था। Our human brain gets 6,000 thoughts a day. Some are conscious and some are subconscious. हम सोते हुए भी कभी-कभी सोचते हैं। आप कहेंगे वो हम कैसे सोचते हैं? When we talk about dreams, dream is nothing. आप जब ड्रीम एनालाइज, कभी मेरा मुझे कभी दोबारा ऐसा मौका मिला तो मैं ड्रीम एनालिसिस पर बात करूंगी आपसे। ड्रीम्स आर नथिंग बट आवर थॉट्स, जो कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें ये फील होता है कि हमने ड्रीम देखा। ड्रीम तो डे में भी देखे जाते हैं। आप अपने आप को इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाइए, आपका ड्रीम हो गया। और कॉन्शियस वे में हम कभी-कभी तो बहुत यूजलेस थॉट्स अननेसेसरली, क्योंकि एक हैबिट में आ जाता है ना थिंकिंग, और हमें ये लगने लग जाता है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ लोग तो इनफैक्ट इस तरीके की थिंकिंग को दे स्टार्ट एंजॉयिंग,
एडिक्शन हो जाता है। अब देखिए हम थॉट्स के बारे में हम जब बात करते हैं एडिक्शन, तो केवल एडिक्शन हमारी बाहरी चीजों का नहीं होता है, हमारी इंटरनल चीजों का भी एडिक्शन हो जाता है। हमें थॉट्स में रहना अच्छा लगने लग जाता है। हम जब भी मौका ढूंढते हैं कभी कभी अकेले में जाके, तो हम सबसे पहले जैसे अकेले में लगता है कोई नहीं देख रहा, कोई डिस्टर्ब ना करे, तो हम अपना कोई ना कोई एडिक्शन पूरा करें। ये भी एक एडिक्शन, हम अपने थॉट्स के बारे में अपने, और वो थॉट्स जो एक्चुअली रियलिटी से बहुत दूर है, हम उनको एंजॉय करते हैं। We need to treat our thoughts as separate from our objective truth. हमें मालूम है वो थॉट्स रियलिटी नहीं है। कई बार हमारे थॉट्स फॉर्मेशन भी अलग अलग तरह से होता है, बहुत चीजों से हमारा थॉट्स फॉर्मेशन जो है वो अफेक्ट होता है। जब हम कभी कभी किसी सोसाइटी में या किसी को देखते हैं, उसकी हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, हो सकता है वो हमारे लिमिट में नहीं होती है। कभी कोई सीरियल देखते हैं, आप देखिए जो ऑलमोस्ट हर घर में ही चलते हैं काफी सारे सीरियल्स, इनको हम एंजॉय करते हैं। एक्चुअली वो सारा हम जब सुनते हैं वो एनर्जी उसको हम हमें लगता है कि हम उसको रिलैक्स, वी आर जस्ट रिलैक्सिंग व्हाइल वाचिंग दीज सीरियल्स और न्यूज। हमें न्यूज में बड़ा मजा आता है, जब तक मिर्च मसाला ना हो मजा नहीं आता। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये सारी चीजें जितनी नेगेटिव है, इनफैक्ट वो न्यूज रियल होती है, रियलिटी होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है। आप क्या करेंगे जान के, पता लगा इतनी कैजुअलिटीज हो गई, कोई कैजुअलिटी की न्यूज सुन के या कोई भी उसको सेटबैक ना हो, ये हो नहीं सकता। वो एंजॉय नहीं करेगा। अच्छा तुम्हें पता है इतनी कैजुअलिटी हो गई, ऐसे नहीं बोलेंगे। वो एक सिग्नल हमें क्या होगा, वो स्ट्रेस में डाल देता है। एंड वी स्टार्ट थिंकिंग, कई बार तो वो सारे सिम्टम्स हम अपने में ही देखने लग जाते हैं, और तब हमें काफी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वी गेट इनटू ट्रबल एंड स्टार्ट ट्रीटिंग आवर थॉट्स एज फैक्ट। वी शुड स्टार्ट ट्रीटिंग आवर थॉट्स। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज ठीक है और क्या नहीं। थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, ये तो हमें भी मालूम है। फैक्ट क्या है, जो हमारे सामने है, और हमारे थॉट्स हमारे फैक्ट्स तो नहीं। जो रियलिस्टिक थॉट्स हैं, जिनके थ्रू हमें कुछ अचीव करना है, उनके लिए हम कोशिश करेंगे, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो मैं आप लोगों से ये बोलूंगी कि आपके थॉट्स आपको डिक्टेट ना करें, क्योंकि जब हम अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं, किसी भी, चाहे एक्सटर्नल कंपोनेंट पर या अपने इंटरनल पर, बस सारी गड़बड़ी तो तभी है। इमोशनल हेल्थ, हमारे जो इमोशंस हैं वही तो हमें मोटिवेट करते हैं। किसी ने मुझसे कुछ कह दिया और हमें कौन सा इमोशन आया, एंगर का, और ऐसे में हमने क्या किया, हम भूल गए कि हमें एंगर नहीं करना था, नहीं लाना था, लेकिन उसको हम एक्शन में ले आए। या तो हमने ऊंची आवाज में बात करनी शुरू कर दी, और या फिर अच्छा, ये हमारा दिमाग बहुत अच्छी तरह जानता है कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है। इस एंगर का मैनेजमेंट है तो हमारे हाथ में, हमारे एक्शंस का मैनेजमेंट है तो हमारे हाथ में, और हम जानते हैं किसके साथ हम कैसे बिहेव कर सकते हैं। आपको मालूम है कि किसको स्लैप कर सकते हैं आप गुस्से में, आप उसी को स्लैप करेंगे, आप सबको स्लैप नहीं करेंगे। जब इतनी चीजें मालूम है तो आपको ये भी मालूम है कि गुस्सा नहीं करना, बट हम फिर भी करते हैं। Sometimes our emotions can be misleading. कई बार ऐसा भी होता है
कि हमें बाद में बहुत रिग्रेट होता है, अरे यार इतना भी गुस्सा मुझे नहीं करना चाहिए, शी इज सो स्वीट, पहले तो उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, फिर क्या होगा, हो सकता है उसकी भी अपनी कोई परेशानी हो। ये चीजें हम नहीं सोचते और क्या करते हैं, एक रिस्क में आ जाते हैं कई बार। पता लगा कहीं पर जाके अपने इमोशंस, अपना एंगर शो कर दिया, पता लगा लॉस्ट योर जॉब, लॉस्ट योर रिलेशनशिप। तो we should always have control on our emotion. Emotional health is very well connected to mental health. ये जितने भी components हैं, trust me, ये इनिशियल लेवल, अगर इनको हम इन पर काम कर लेंगे और ये हमारे हाथ में ही होते हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर तक नहीं पहुंच पाएंगे। See, what a good saying. Emotions can get in the way or get you on the way. Choice is yours. हम बात कर रहे थे अपने थॉट्स, इमोशंस, एंड देन ऑटोमेटिकली इट रिफ्लेक्ट्स आवर बिहेवियर। आसपास क्या हो रहा है, एक बार अगर हम ये समझ लें और उसको एक्सेप्ट कर लें, हालांकि हमें मालूम तो होता है, एक्सेप्टेंस नहीं आती कि ये ऐसा ही होने वाला है, इसे हम बदल नहीं पाएंगे, ये पहले भी हो रहा था, ये अब भी हो रहा है और आगे भी होगा। तो हमारा बिहेवियर जो है वो बहुत इजी हो जाएगा और हम अपनी बिहेवियरल जो हमारी हेल्थ है, we will be able to take care. हमारे रिलेशनशिप की जो क्वालिटी है वो हमेशा बेटर रहेगी। किसी भी चीज को लेके जहां पर हम किसी कम्युनिटी या जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं भावनात्मक तौर पर, अगर हमारा बिहेवियर उनके साथ थोड़ा सा अगर सोच लेंगे कि ये आज ऐसा है कल ऐसा नहीं था, तो हमारी बिहेवियरल हेल्थ जो है अफेक्ट नहीं करेगी। अब बात करेंगे कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें। देखिए, मैं आप लोगों से ये कहूंगी, हालांकि इस कोविड ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया, हमारा एंटायर लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। हर चीज का एक फ्लिप साइड होता है। आई एग्री, बहुत सारी सफरिंग्स रही, लेकिन फिर भी this COVID taught us many good lessons. अगर आप डेड फूड खाएंगे, आप ये देखिए आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। मैं सिंपल आपके मील पर आती हूँ। If you will prefer to eat dead food or stale food, आप जब हम ऑर्डर करते हैं बहुत सारे ये क्या कहते हैं आपका बहुत सारी ऑर्डर करने वाली ऑनलाइन, इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ क्योंकि मैं आउटसाइड फूड बहुत कम खाती हूँ, मतलब ऑर्डर तो बिल्कुल ही नहीं करती, क्योंकि वो कहाँ से ऑर्डर आ रहा है, कब आ रहा है, और उसको आपको भी अपने घर गर्म करना होता है माइक्रोवेव में। इट बिकम्स डेड। जो आपके कंटेनर्स में फूड आता है, जो आपका आजकल फ्रोजन फूड का बहुत ज्यादा जमाना है। इनफैक्ट हमने तो कभी फ्रोजन फूड सुना ही नहीं था,
और आज आप देखिए फ्रोजन फूड को लोग बहुत एंजॉय करते हैं। जब हम ये भी इन पार्टीज में भी वो फ्रोजन फूड बहुत सर्व किया जाता है। कितने सारे प्रिजर्वेशंस पड़े होते हैं, मालूम सब होता है। किसी भी चीज की एक्सपायरी चेक कर लेते हैं, मगर ये नहीं चेक करते कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स कौन-कौन से पड़े हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जैसा हमारा आहार होगा, आयुर्वेद में 4 चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। जैसा भी हमारा आहार होगा, हमारा मन वैसा ही होगा। आप जैसा खाना खाएंगे, इफ यू विल स्टार्ट लिविंग फूड जो ग्रो करता है हमारे सामने, उसको खाएंगे, यू विल ऑल्सो ग्रो। और आपकी जो एनर्जी है वो, क्यों जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बार बार प्रिस्क्राइब करता है, अब आपको कुछ टाइम के लिए ये खाना नहीं खाना, अब आपको क्या खाना है, आपको ग्रीन वेजीज खानी है, आपको जूस लेना है। वो हमेशा कभी भी डेड फूड को किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखता। और हम वेट करते हैं कि कब जल्दी से ठीक हो और हमें हमारे मन का खाना मिले, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल होता है वो नहीं होता, और हमें वही खाना अच्छा लगता है। अगर आप ट्रस्ट में एक बार उसकी हैबिट डालिए ग्रीन फूड की, ग्रोइंग फूड की, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना टेस्टी होता है। तो यू हैव टू ईट राइट फूड, राइट फूड राइट टाइम। आपका रूटीन राइट होना चाहिए। ये 4 आवर्स बहुत जरूरी है। राइट रूटीन होना चाहिए। रात को कुछ लोगों की आदत होती है, उनको पता नहीं क्यों लेट नाइट ही सब समझ में आता, वो अवेक ही होते हैं लेट नाइट। वो ऐसा क्यों होता है? ये एक दिन का काम नहीं होता। एक्चुअली हमें हैबिट हो जाती है। आई कांट से कि कुछ बहुत सारे लोग जो यूएस बेस्ड कंपनीज में काम करते हैं, जहां पर हमारा टाइम जोन डिफरेंट होता है, दैट्स अ प्योरली डिफरेंट इशू। वो तो हमारे लिए देखिए अपनी वेलबींग के लिए और हमें करना ही होगा, लेकिन फिर भी जितना हमारे हाथ में है, जो हमारी कोशिश हो, वो तो हम कर सकें कि एक अपना राइट रूटीन तैयार कर सकें। हम में से बहुत सारे लोग, आप देखिए जब हम लोग बाहर घूमने जाते हैं तो राइजिंग सन देखने जाते हैं। अरे राइजिंग सन, सबके घर पे सनराइज होता है, क्यों हम मिस कर देते हैं? बिकॉज ऑफ आवर दिस फॉल्टी रूटीन, रॉन्ग रूटीन। पता लगा जब हम 12 बजे के बाद सोकर ही उठेंगे तो आपका जो रूटीन है, ब्रेकफास्ट तो गया, और लंच का टाइम भी इट शुड बी बिटवीन 12 to 2। तो उठने के बाद आपको यू हैव टू गेट फ्रेश, और ये फ्रेश नहीं आप हो पाएंगे, उसके लिए भी आपको कुछ आर्टिफिशियल चीजें लेनी होंगी। सारा का सारा रूटीन खराब हो जाता है, और बाय द एंड ऑफ द डे यू फील नोजिया, यू फील हेडेक, यू फील स्ट्रेस्ड, क्योंकि वी ऑल गेट अ फिक्स्ड स्लीपिंग आवर्स, और कब हमें जगना चाहिए, हमें सारी चीजें मालूम है कि भाई आप देखिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एडोलेसेंट के लिए 5 to 6 आवर्स स्लीपिंग इज परफेक्ट। लेकिन या तो हम बहुत कम सोते हैं, पता लगा पूरी रात ही जागते रहे, और या फिर हम बहुत ज्यादा सोते हैं। तो एनीथिंग which is not balanced will definitely create a problem। और एक बात मैं आप लोगों को और बताऊंगी कि ये जो हमारा रूटीन होता है, हम जो कुछ करते हैं अपने मन से करते हैं। ये जो हमारा ब्रेन होता है, आपका ब्रेन जैसे जैसे आप जब आंखें खोल रहे हैं, जब उठ रहे हैं, वो सारे, दैट मींस यू आर गिविंग द सिग्नल्स टू योर ब्रेन। आपकी जो एक साइकिल है वो वही बन जाती है जैसी साइकिल आप बनाना चाहिए। और फिर बहुत मुश्किल होता है जब आप उसको चेंज करें, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स तो आनी है। तब तक आपकी
जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो कब तक आपको सपोर्ट करेगा? हम सब जानते हैं कि ब्राइटनेस और नेचुरल एक्सपोजर हमारे लिए कितना हेल्दी है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। किसी एक इंसान को अगर आप लगातार एसी रूम में कई दिन तक काम करते हैं, क्या होता है? वन गेट्स डिप्रेशन, कहीं ना कहीं कुछ उलझन होती है। हम क्या करते हैं? आप किसी को खुले आसमान में हम क्यों जाते हैं पार्क टू गेट फ्रेश? दिल्ली में मैं मानती हूँ दिल्ली इज अ सिटी ऑफ फ्लैट्स, बट हर फ्लैट से हमें आसमान दिखता है। ट्रस्ट मी, आप कभी आसमान को यूं ही देखेंगे, यू विल एंजॉय वॉचिंग स्काई। आप बहुत सारी उसमें इमेजेस देखेंगे और वो इमेजेस नेगेटिव नहीं होंगी, आई कैन अश्योर। राइट रिक्रिएशन ये बहुत जरूरी है। देखिए, आपका रिक्रिएशन कैसा है? आप व्हाट डू यू वॉच? आज मोबाइल युग है, हम सबके पास लोगों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हमारे मोबाइल पर, फेसबुक पर क्या है, सोशल मीडिया पर क्या है, वो उसमें हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। आप देखिए कि मेट्रो में आप ट्रेवल कीजिए, आप किसी इवन हॉस्पिटल में व्हेन यू गो टू गो फॉर योरसेल्फ और योर एनी नियर एंड डियर वन, वहां भी हम मोबाइल निकाल के अपनी ही दुनिया में लगे रहते हैं। वहां आप कोई पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे होते, वहां आप अपने लिए कुछ ऐसा नहीं, बहुत कम लोग जिनके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है या उनका रूटीन ही बैलेंस नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो कैसे कहां पर काम करें। तो हम जैसा अपने आप को, जिस तरीके की जो स्टफ देख रहे हैं, वो हमारे माइंड पर बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे कि आपका माइंड वैसा ही बनता ही चला जा रहा है। हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों को हम जैसा दिखाएंगे वो वैसा बनेंगे, जैसा खिलाएंगे वैसा बनेंगे। नहीं, ये बात हम सबके लिए है। हम जैसा देखेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि क्यों अभी नवरात्र गए, नवरात्र में आप हर घर में देखिए माता की आरतियां, देवी माता की और बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं वही बजते हैं। उस समय हम क्या कहते हैं? Why only for 9 days? कि नहीं, हमें इस तरह से रहना है। माता तो आके नहीं आपसे कहती कि आप ऐसे रहिए। जिस घर में प्रेयर्स मॉर्निंग में आप देखिए चलाई जाती हैं, जिस घर में मॉर्निंग में, कुछ घरों में न्यूज चलती है, वहाँ क्या होता है? आप, मैंने अक्सर देखा लोग ब्रेकफास्ट के साथ न्यूज देखते हैं। आप ब्रेकफास्ट क्या कर रहे हैं? आप वो चीज अपने अंदर लेते जा रहे हैं, नेगेटिविटी। ये भी मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी, बहुत सारे लोगों में एक हैबिट होती है कि वो कुछ भी देख लेते हैं। कुछ भी का मतलब एनीथिंग, जो आपके मतलब का है नहीं है, बस आपके मोबाइल पे आ गया तो इट बिकम्स योर ड्यूटी टू वॉच। अरे यू आर नॉट द डस्टबिन, कुछ भी खा ले, कुछ भी देख ले, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी अपनी चॉइसेस होती है। आप जैसा लिटरेचर रीड करेंगे, आपके मन में थॉट्स वैसे ही आएंगे, आपको वैसा ही खाना खाने का मन करेगा, आपको वैसा ही आपकी हैबिट बन जाएगी और बाद में वो परेशान करेगी। आपकी थिंकिंग, राइट थिंकिंग। कुछ हमारे लोगों में एक आदत होती है, हम में से, सब में से, कि हम सबसे पहले नेगेटिव ढूंढते हैं। कोई बहुत स्वीट है, जरूर इसके पीछे कोई कारण है, इसका कोई काम है। अगर कोई बहुत ज्यादा शुगर कोटेड है, कुछ तो रीजन है।
अरे जो जैसा है उसे वैसा ही बना रहने दीजिए ना, आपको क्या लेना देना। आप अननेसेसरली उसके बारे में सोच रहे हैं। देखिए मैंने ये इस चीज को खुद एक्सपीरियंस किया। सामने वाला कैसा है उसे ना तो आपको बदलना चाहिए और ना ही बदलने के बारे में सोचना भी चाहिए। और मैं कहूंगी इसीलिए हम बदल नहीं सकते। राइट थिंकिंग इज आवर राइट। ये हमारे राइट्स हैं चार, जब हम राइट्स की बात करते हैं। आप सही सोचिए, सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है वो काम आपको नहीं सोचना। उसके जो भी चीजें हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो भी हैं, वो उसको बाद में अपने आप मिल जाएंगे और वो खुद का खुद ट्रस्ट में सामने आ जाते हैं। बाद में पता चलता हमने बेकार इतनी मेहनत कर रहे, हमें कुछ नहीं करना होता।